वेलकम गाइस। सो देखिए, धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट अब हम सेकंड लास्ट पेपर में आ गए हैं जो नवंबर 18 में आया था। ये फाउंडेशन, उससे पहले सिर्फ मई 18 था। देखिए, रिवीजन करना मुश्किल नहीं है, कहते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आपको सिर्फ सही डायरेक्शन में करना है। इसीलिए आप लोग बड़ी टेंशन में थे, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। इसलिए मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। तो आई होप इसका आपको फायदा रहा होगा। और आई प्रे टू गॉड कि जो हमने मेहनत करी है, यही चीज़ आपके एग्जाम में भी अगर आ गया तो आपके 16 मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। आप देख रहे हैं थ्योरी जनरली 4 नंबर वाली हर बार डिफरेंट आई है, तो इसीलिए उस पे बेकार में टेंशन मत लीजिए। कहीं ना कहीं आप 2 या 3 नंबर उसमें आराम से अचीव कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉपरली लिख के आइएगा विद एग्जाम्पल्स। चलिए, नवंबर 18 की ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर नॉर्मल ओवरहॉलिंग होता बेटा तो ये रेवेन्यू होता, बट लिखा है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सीएनजी लगवाई होगी एटसेट्रा। स्टेटमेंट इज ट्रू। No, statement is false because any overhauling expenses to get a better fuel efficiency is a capital expenditure, because capital expenditure are those expenditure which increases the life, efficiency, revenue earning capacity of the business, and such expenditure are recorded in the balance sheet. इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी motor car account debit to cash. If it would have been revenue expenditure, the entry would have been overhauling expenses to cash. Depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. Statement is true because depreciation is charged on the asset, but it does not result any outflow or any payment from the business enterprises. The entry for depreciation is depreciation account debit to asset. It is governed by accounting standard 10, that is property, plant and equipment. Fee received for life membership fee is the revenue received. Statement is false because fee received for life membership fee is a capital receipt and is shown while preparing the balance sheet under the heading of capital funds or under the heading liabilities, as it is of the non-recurring nature. Example, CA Institute also received life membership fee from its members for the benevolent funds. Fourth, if closing stock appear in the trial balance, closing inventory is not entered in trading account. Statement is true because if closing stock appears in the trial balance, it means already the entry for stock has been passed and adjusted in the ledger. Purchase stock, closing stock account debit to purchases, and therefore if closing stock is appearing in trial balance, it is not entered in trading account, rather it takes to the balance sheet because all items of trial balance are only accounted once. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ले सकते हैं 100 रुपए का और उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का है, इसलिए हमें नहीं करना है। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, लॉस ऑफ बैड डेब्ट इज टू बी बोर्न बाय द कंसाइनर। याद करिए, डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दी जाती है? जिससे कि कंसाइनर का लॉस खत्म हो जाए। डेल क्रेडिट कमीशन इज द कमीशन व्हिच इज पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी सो दैट any loss on account of bad debt is not borne by consignor, rather borne by the consignee, and therefore the above statement is false because if Del credit commission is paid to consignee, the bad debt loss is to be borne by consignee and not the consignor. आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री भी देना चाहें तो दे सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी? इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। सेल की एंट्री बनेगी डेटर टू सेल्स। क्या बनेगी? डेटर टू कंसाइनर। बैड डेट की एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट टू डेटर। और बैड डेट को क्लोज करना है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स बिकॉज डेल क्रेडिट कमीशन हैज बीन गिवन। क्लैरिटी? पक्का? कंफर्टेबल? डिस्कस द लिमिटेशन व्हिच मस्ट बी kept in mind while evaluating the financial statement। ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या लिमिटेशन होती हैं? आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फाइनल अकाउंट्स में हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेते, जैसे इंप्लॉइज। फाइनल अकाउंट्स में हम इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं लेते। अगर हमने लैंड 10 साल पहले खरीदी है 100 रुपए की, तो हम आज अगर उसकी वैल्यू बढ़ भी गई है तो इन्फ्लेशन का फैक्टर हम नहीं लेते। फोर्थ, किसी ने एसएलएम पे डेप्रिसिएशन लगाया, किसी ने डब्ल्यूडीपी पे लगाया, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। किसी ने एसएलएम पे लगाया, डब्ल्यूडीपी पे लगाया, प्रोविजन कितना लगाना है, 5%, 10%, ये एस्टिमेट बेसिस पे है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं फाइनल अकाउंट्स की। ये देखिए हमने बुक में भी दे रखी है। हिस्टोरिकली नेचर, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं। प्रोविजन कितना लगाना है, परसेंटेज मैनेजमेंट डिसाइड करती है।
अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग होती है, इसीलिए कंपैरिजन में मुश्किल होता है। क्वालिटेटिव फैक्टर लेते नहीं है, इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है। मोर देन सफिशिएंट, आप इसका एग्जाम्पल लिख के आइए, सफिशिएंट हो गया। क्लैरिटी, चलो जी गुड। अब एक रह गया हमारा सिर्फ मे 18।